Good morning, Jai Hind. Friends, today we are here to discuss something about the customer psychology in real estate. Means being a real estate agent. और लोग और हम लोग में जो अंतर है, we actually would like to understand the customer's mentality and psychology before they would like to finalize their property. They would like to finalize their choice of the property. अगर हम स्लाइड में आगे जाएंगे तो लेट्स से बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर हमको रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझना जरूरी है. रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर हेड्स, नेमली रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी. हम सबको ज्यादातर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल पता रहता है, मतलब जो फ्लैट्स बनते हैं, शॉप्स बनते हैं या तो दुकान सेल के लिए आती है, दैट इज फॉर रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल. रिटेल, इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा सा ग्रुप एक मॉल कंस्ट्रक्ट करता है और वो जो ग्रुप है बाजार में अपना अपना इन्वेंटरी रेंट पे या तो लीज पे या तो सेल के लिए ऑफर करता है. फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में अल्फा वन मॉल है, या तो फिर हिमालय मॉल है, या तो भोपाल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल आ रहा है, हु आर ऑफरिंग देयर इन्वेंटरी फॉर सेल और फॉर लीज. और आखिर में आता है इट इज द हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मीन्स ताज ग्रुप ऑफ होटल would like to have their hotel in Ahmedabad. Already उनका एक है, दूसरा बन रहा है सिंधु भवन एक्सटेंशन पर. So this kind of international groups in the hospitality would like to have their hotel as per their expansion policy of the business. वो अपना ऑर्डर देंगे, उसमें किसी को कुछ नहीं करना है. मतलब if you are the broker or if you are the real estate consultant, very few are the chances that you got the consignment order from the international group and you are finding the land and you are assisting them to construct their properties, right? Mainly being a real estate agent or the consultant, we will be there in 4 main heads, namely buy or sell and rent or lease. Buy or sell may be of residential and commercial or to an extent retail. Rent or lease may contain the hospitality part. An average real estate consultant has to spend much of their time behind the residential and commercial properties. As I told and discussed earlier, only 5 to 10% population out of the real estate consultants would be having the portfolio of retail and hospitality. If we proceed further, being a professional real estate consultant, when I am telling the professional real estate consultant, I want to draw your attention on few things. जैसा कि एक normal consultant जो होता है. Now let's say the easiest thing to start your career as a real estate consultant is that there is no entry barrier. मतलब इधर बिजनेस चालू करने के लिए रियल एस्टेट कंसल्टेंट के टेक लाइन के नीचे यू डोंट रिक्वायर अ हैवी लाइसेंसिंग प्रोसीजर. यस, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रेरा एक्ट, द बेयर मिनिमम थिंग विच यू नीड टू एंश्योर इज टू हैव योर रेरा नंबर, जीएसटी नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर. इतना छोटा सा फॉर्मेलिटी पर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. बट in India, if you look our surrounding, abhi bhi more than 60% of the real estate consultants are not having their RERA number, are not having their GST number, are not having their establishment license number. Why? Because एक बड़ा सा जो समुदाय है रियल एस्टेट कंसल्टेंट का, they are part timer, they are not full time professionals who would like to have their career एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. पार्ट टाइमर इसलिए है क्योंकि उसमें जॉब आवर्स आप जब चाहे तब जा सकते हैं, जितने आवर यू वुड लाइक टू वर्क यू कैन वर्क फॉर दैट. और इनकम इज क्वाइट गुड बिकॉज विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट टेलिंग कि देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट देयर आर चांसेस टू गेट सम सॉर्ट ऑफ गुड इनकम बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. बट जो ये पूरे क्राउड में से प्रोफेशनल कंसल्टेंट को या प्रोफेशनल एजेंट को डिफरेंशिएट करता है, वो है द नॉलेज अबाउट योर सिटी, knowledge about the different areas of your city, different pockets of your city. Let's say in today's scenario,
any town is having a different cultures, different groups, different religions. If you talk about the Ahmedabad is having a kind of cosmopolitan crowd at particular area and kind of typical Gujarati crowd at particular area. So before starting your career, full time professional real estate consultant, आपको अपने सिटी के बारे में, सिटी के अलग अलग एरिया के बारे में, और वो एरिया में सब पॉकेट्स, डेवलपिंग एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया, द एरिया विच ऑलरेडी हैज बीन डेवलप्ड, वो सबका नॉलेज होना जरूरी है. बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच द कस्टमर वुड लाइक टू हैव फ्रॉम द रियल एस्टेट कंसल्टेंट. जबकि आज की तारीख में क्या है, एक नॉर्मल सा रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज नॉट टेकिंग मच ऑफ द इंटरेस्ट इन ऑल दिस मेंशन पॉइंट्स. वो क्या करेगा, एक नॉर्मल तरीके से लीड लेगा, लीड जनरेट करेगा, कस्टमर को कॉल करेगा विदाउट अ फर्दर प्लानिंग, अ सिस्टमेटिक अप्रोच. वो कस्टमर को सीधा साइट पर ले जाएगा और फिर एक दो क्वेश्चन कस्टमर रेज करेगा, ही विल बी ब्लैंक, उसको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा. So it is not the education which does matter, it is the level of information, the in-depth knowledge about the different pockets of the area which does matter in your dealing. And customer अगर real estate agent का assistance या help लेता है, तो our role will be to cater them with the available information only. So from the above discussion, it is bit easy to classify our customer. Let's say it is not only the area knowledge, but it is the preference of the customer, in which area they are interested, in which area they would like to have their property. So agar customer is having a bit clarity about their selected area, we can judge about the level of the customer, the class from which it comes, or let's say the approx potential of the customer, whether they would like to spend. I mean, there are two things. मुझे 4 BHK विला सैटेलाइट में चाहिए और मैं 4 BHK विला सैटेलाइट में ले सकता हूं. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. कस्टमर्स आर हैविंग एंडलेस डिमांड, बट एक्चुअल पोटेंशियल हमको आइडेंटिफाई करके हमको अपना एफर्ट्स वो पर्टिकुलर कस्टमर के पीछे कितना डालना है, वो सिर्फ दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा. एक तो एरिया का नॉलेज and customers understanding. So we are here to understand the customer today and some sort of psychological aspects जो customer लेके घूम रहे हैं. So what we have discussed is the kind of real estate sector, then the area knowledge, and let's we understand the scope of real estate industry in India, because let's say it is a kind of open economy and people are having their expert knowledge. Real estate industry अभी डाउन जा रही है, अभी अप जा रही है, अभी तो प्राइस डाउन हो जाएगा, अभी प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा नहीं. आई मीन सी पीपल आर कमिंग विथ डिफरेंट रिमार्क्स एंड फीडबैक्स अबाउट द डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डेवलपर, पर्टिकुलर स्कीम. बट द रियलिटी, इफ आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ पीपल, इज दैट इंडियन पॉपुलेशन, we are the country of almost 135 crore people, and as per the study, almost 66% of the population of this 135 crore people in India are between the age of 29 to 39 years of ages. One more observation is that a person is able to make his or her first home at the age of 29 to 38 years of ages. I am not telling कि 29 years जिसका नहीं हुआ उसने पहला मकान नहीं बनाया होगा, या तो जिसने 45 years क्रॉस कर लिया होगा और वो पहला मकान नहीं बना रहेंगे. There are class, exception are always there, but what I am talking about is the lump sum bigger observation out of the audience. As I am there in the industry for last 10 years, I have seen many people between these two age category, 29 and 39 year of age, at which they would like to have their first residential property, right? So we have discussed the population, we have discussed the percentage of the youth out of the population, and the third is the percentage by which we are increasing per annum. So Indian population is increasing with 2.1% per annum. It means that we are adding one Australia within the India on every year. Now this newly adding population today will be our prospective client after 20-25 years.
सो ऐसा कंट्री जिसमें हर साल 2-2.5 करोड़ लोग ऐड होते हैं, ऐसा कंट्री जिसमें 66% लोग यूथ में आते हैं, ऐसा कंट्री जिसमें एवरेज इनकम यूथ जो है उसका बिटवीन 15,000 टू 30,000 पर मंथ है. तो इट मीन्स दैट देर इज अ स्कोप ऑफ रियल एस्टेट इन दिस पर्टिकुलर कंट्री. एंड हमारे कंट्री में टू थिंग्स आर हैपनिंग विथ लिप्स एंड बाउंड्स. वन इज द अर्बनाइजेशन and the another is nuclear family concept. Under the urbanization, people from the surrounding villages would like to have their life in particular city. And if you look at the history of the Ahmedabad or Mumbai or Bangalore or Rajkot, any town you pick, I mean, which is a good town in particular territory, almost 50 or more than 50% of the population are not belong to ab origin city. आई मीन टू टेल कि राजकोट में जो बंदा रहता है 50% ही ऐसा क्राउड होगा जो प्रॉपर राजकोट का होगा, बाकी सराउंडिंग से आते रहेंगे. द सेम इज स्टोरी विथ मुंबई, द सेम इज स्टोरी विथ दिल्ली और हैदराबाद और अहमदाबाद, एनीथिंग. सेकंडली, विद इन अ सिटी, because of the limitation of the space and because we are increasing with a good number as far as the population is concerned, there is a concept of nuclear family which is there in the picture. Even though people would like to live in a joint family, because of a limited spaces like 1 BHK and 2 BHK, people would like to purchase one more 1 BHK, one more 2 BHK for their generation next. So this is one of the reason हम ये बोल सकते हैं कि there is a good scope and future of real estate industry in India in coming years. And finally, the present government which has been elected in the year of 2014, they have gone for the project or a mission which is called Housing for All by 2021. Under this project title Housing for All, government is going to provide essential and required support to residential real estate sector. So what we have discussed is, the scope of real estate industry, the possibilities of real estate industry, and now here, are we ready to peep in the psychology of the customer? Because it is quite interesting. The one good thing of the real estate is, if we talk about any product is from a small ball pen to big four-wheeler car, a luxury big four-wheeler car, from BMW, from Audi, from anything, they are having defined price. What we are identifying is an MRP. The highest ever price than the luxury car or more than that is having no identified or defined price, that is real estate. Well, then there is no concept of MRP in real estate. So without having a defined MRP, without having the price tag, even then customer is investing their hard earned money. तो वो कुछ तो psychology रहेगा. So we would like to understand the psychology in coming slides, and we will discuss the psychology of the customer behind three renowned particular schemes, that is residential, commercial and plotting scheme. So here, first of all, we would like to look at some of the prevailing aspects in the real estate residential project. Now residence is our home, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, या तो जहाँ पर एक आम इंडियन would like to stay for a life. तो इन इंडिया इट हैज बीन टोल्ड, इट इज वेरी कॉमन, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे सपनों का एक मकान, मेरे सपनों का एक घर, माई ड्रीम हाउस. अब द वर्ड ड्रीम इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली. वो ड्रीम हाउस किसी के लिए 1 BHK भी हो सकता है और वो ड्रीम हाउस किसी के लिए 5 BHK विला भी हो सकता है. सो इट बेसिकली डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, एंड एवरी पर्सन when they are going to purchase their residential property. Now what we are telling in normal course of language, बोलते हैं बंदा दिल से सोचता है और बंदा दिमाग से सोचता है. So when we are talking about the residential property, people are thinking by heart, people are thinking from the emotions, they are not thinking from the mind, more or less audience I'm talking about, right? So let's say when they are going to purchase a residential property, और हम लोग ने बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट एक सिटी को स्टडी कर लिया है, एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर लिया है, एंड वी आर जस्ट गोइंग विथ अ कस्टमर टू पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्कीम. उसके पहले क्या करना चाहिए, या तो वाइल ड्यूरिंग द साइट विजिट हमको क्या करना चाहिए,
और साइट विजिट खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए. वी विल डिस्कस ऑल these थ्री थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन. इज फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नॉर्मल सा लीड होता है. नॉर्मल सा लीड मतलब या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से आपको कस्टमर का नंबर मिला होगा, या तो पोर्टल से आपको नंबर मिला होगा, या तो आपकी कंपनी ने आपको एक नंबर दिया होगा कि ये कस्टमर को आप कॉल कीजिए एंड अरेंज अ साइट विजिट. हो सकता है कि पर्टिकुलर डेवलपर के साथ आपका टाई अप हुआ होगा, या यू आर न्यू टू द पर्टिकुलर डेवलपर ऑल्सो. सो ऑलवेज व्हेन यू आर कॉलिंग टू द कस्टमर, बेसिकली अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट. कस्टमर्स जब भी कुछ खरीदने जाते हैं इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट सेड के एवरी कस्टमर इज वेरी क्लियर फॉर द रिक्वायरमेंट. यस, मेट्रो में सिनारियो अलग हो सकता है. इन मुंबई, in Pune, in Delhi, the customers, because they are highly professional, they are running out of their time, they would like to do some sort of homework. मतलब वो लोग क्या करते हैं, वेबसाइट से पर्टिकुलर एरिया देख लेते हैं, वेबसाइट से पर्टिकुलर स्कीम का ब्रोशर डाउनलोड करके देख लेते हैं, वेबसाइट से वो एरिया डेवलपमेंट, स्कीम का डायमेंशन, फ्लैट का डायमेंशन, सब कुछ होमवर्क करके आते हैं. बट दिस काइंड ऑफ ऑडियंस इज लेस देन 10%. 90% ऑडियंस अगर हम लोग मेट्रो में काम नहीं करते हैं तो दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर होमवर्क एट देयर होम. तो बीइंग अ प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि हम लोग और एजेंट से अलग है, वी विल डू होमवर्क ऑन बिहाफ ऑफ देम एटलीस्ट. क्योंकि ना सिर्फ कस्टमर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज वी हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम एनर्जी बिहाइंड अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. तो जितना टाइम उनका इंपॉर्टेंट है उतना टाइम हमारा भी इंपॉर्टेंट है. जितनी एनर्जी वो लोग लगा रहे हैं उससे 10 टाइम्स हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं. सो इट इज लाइक अ म्यूचुअल कंसेप्ट. उसको चाहिए मकान तो हमको भी चाहिए कि हम लोग टाइम, हमारा भी, वी नीड टू पे रिस्पेक्ट ओवर टाइम ऑल्सो. सो अगर होमवर्क किया है एरिया का तो वी विल बी इन पोजिशन टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ब्रीफ अबाउट द एरिया. Let's say some patches in the Ahmedabad comes or falls under the affordable zone. Now these affordable zone are having size limitation. मतलब उसमें गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया है, एज ऑफ नाउ इट इज 60 स्क्वायर मीटर फॉर 2 BHK एंड 90 स्क्वायर मीटर फॉर 3 BHK. उससे बड़ा साइज बन नहीं सकता. सो इफ एनी कस्टमर इज लुकिंग फॉर अ बिगर 3 BHK, and if you are taking their customer in affordable zone, not only they are ruin their efforts, you also will ruin your efforts, right? So then there is no logic to carry a customer in affordable zone and vice versa. अगर किसी कस्टमर का बजट लिमिटेशन है और आप उसको पोश एरिया में ले जाते हैं, आप उसको बड़े यूनिट दिखाते हैं, तो यू, इट इज द पर्सन हु इज इन द फॉल्ट. मतलब आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं फिर, राइट? So let's say you have to brief about the area, you have to brief about the average pricing prevailing in that particular area, and you have to brief about the average sizes which is available in particular area. Let's say if it is a posh area, तो साइज छोटा रहेगा लेकिन प्राइस अप जा सकता है. I mean, if I would like to say कि the price of 1 BHK in Mumbai, even in the area like Borivali, is equivalent to price of 3 BHK in Ahmedabad. There is nothing wrong to compare. Or let's say price of 2 BHK in the area called Vastrapur in Ahmedabad is equal to 3 BHK in the outskirts of the Ahmedabad. There is nothing wrong in it, right? So in reality, you have to take telephonic follow-up. While doing telephonic follow-up before the site visit, before the arranging the site visit, you have tried to understand the customers, who he or she is, whether they are employed business person, whether they are just investing or they would like to shift, right? फिर आप उसको साइट विजिट पर ले जा सकते हैं, right? So as we have discussed, some customer would like to collect some information, but the population of such customers are very less. So we have to provide some information while during the site visit or before the site visit. Let's say if customer is having jam pack schedule, वो टाइम नहीं निकाल रहा है, so don't get panic. आप फोन पर उसका अपॉइंटमेंट ले लीजिए. Yes, before taking an appointment, before arranging the schedule, you have to very clear about the area. Don't reveal the name of scheme, just reveal the area. We are going to particular area. If possible,
you plan to meet at particular defined landmark of the area, or you can meet the customer at the place of his or her convenience. Then along with them you would like to go to the particular scheme or area. जब आप जाते हैं तो while during the way you can brief about the area, you can brief about the name of the developers. Yes, in the telephone it is quite essential two things: briefing about the average ticket size, briefing about the average size of the flats or properties in square feet or in square yard. So it will serve your purpose. Second is when you are reaching to the scheme, आप कोई कस्टमर सीधा स्कीम पर आता है, आपने उसको बुलाया कि फॉर एग्जांपल सर आप ऐसा करिए YMCA क्लब पे आ जाइए, आई विल बी देयर एट YMCA क्लब. फिर YMCA क्लब से आप जाते हैं बिल्डर एक्स, वो एक्स बिल्डर के वहाँ आप खड़े रहते हैं. तो नॉर्मल एजेंट क्या करते हैं, सर दिस इज द रिनाउंड बिल्डर, ये 3 BHK है, इससे सस्ता कोई देगा नहीं और बहुत ही बढ़िया स्कीम है. नो, डोंट ट्राई टू फेवर ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस. Even then I would like to, because customer is moving with different questions in their mind. अगर मुझे YMCA क्लब से कोई पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर डेवलपर के पास ले जाया गया है, तो मुझे सबसे पहले उनको दिखाना होगा कि सर दैट वाज द पॉइंट जहां से हम लोग ने जर्नी चालू किया, दिस वाज द मेन रोड जहां से हम लोग आए, अब ये स्कीम जहां पर हम खड़े हैं वहां से नियरेस्ट लैंडमार्क कितने कितने दूर है. और ब्रोशर में काफी सारे डेवलपर इसके ऊपर काफी वजन देते हैं. इट मे बी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ मिनट्स. 10 minutes drive from the airport, 12 minutes drive from the railway station. I mean, you know this particular thing. तो वो जगह पर से हम लोगों को कस्टमर को दिखाना है वर्चुअली, सर यहाँ से वो बस स्टैंड था जहाँ पर हम मिले थे वो 3 किलोमीटर है, यहाँ से वो YMCA क्लब था वो 5 किलोमीटर है, दिस रोड गोज टू दी पर्टिकुलर स्कूल और हॉस्पिटल, देन देर आर 5 different schools surrounding this particular area, there are 6 different banks, 4 different renowned hospitals, मेडिकल शॉप, नियरेस्ट मार्केट. ये सारा वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन है. वो आपने अभी स्कीम दिखाया नहीं है, आप अभी एरिया में स्कीम के बाहर खड़े हैं. आप कस्टमर को जैसे गूगल GPS होता है ना, नियरेस्ट पॉइंट, व्हाट इज नियर टू मी, आप उसको एक्चुअल फील करवा रहे हो. उसके लिए मैंने जैसे बताया था कि आपके पास एरिया का नॉलेज होना जरूरी है, राइट. Then when you are approaching to scheme inside the builder's office, so there are two ways: either you greet the particular developer and lead the customer towards the sample house and the scheme, or you are greeting the developer और आप डेवलपर को बोलते हैं कि दिस इज अ कस्टमर हु आर इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 or 3 BHK और योर पर्टिकुलर स्कीम दे आर लुकिंग फॉर, और फिर वो डेवलपर उसको पूरा एक्सप्लेन करता है, राइट. ज्यादातर केस में डेवलपर वुड लाइक टू एक्सप्लेन देयर स्कीम ऑन देयर ओन. इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कीम. अगर डेवलपर समझाता है ठीक है. काफी टाइम क्या होता है कि डेवलपर या डेवलपर के प्रोफेशनल स्टाफ कुछ प्लस पॉइंट भूल जाते हैं. अगर आपने थोरोली स्टडी किया है पर्टिकुलर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, तो आप उसके प्लस पॉइंट उसको काउंट कर सकते हैं. सर द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, द वर्टिकल हाइट, द एलिवेटर, or the modern amenities like solar light or waste disposable system, who knows. I mean, see, it depends on your amount of information, which is again a value added package of the information apart from your consultancy charge or not, right. So there are the minor points you would like to highlight, and customer को actually visualize ऐसा करना है कि उसने यहाँ आज से अभी से रहना चालू कर दिया. तो बोलेंगे सर इमेजिन कि अगर आपने आज से रहना चालू कर दिया तो वो 3 मिनट की दूरी पर ओडा गार्डन है, यू में गो फॉर द जॉगिंग और वॉकिंग. फिर 15 मिनट की दूरी पर देयर इज अ प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट, और 15 मिनट के बाद आप जाएंगे तो वहां पर एक मल्टीप्लेक्स है. सो दीज आर दी विजुअलाइजेशन. कस्टमर ने मकान लिया नहीं है, बट जब तक कस्टमर का माइंड, बिकॉज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अटैच विद द इमोशंस, जब तक आप उनके इमोशंस फिक्स नहीं करते हैं वो लोग जॉट डाउन नहीं करेंगे ये प्रॉपर्टी को, राइट. सो देयर आर डू एंड डोंट ऑफ द रियल एस्टेट व्हाइल ड्यूरिंग द साइट. वी लुक एट द फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू डू बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट, एंड देन आई विल डिस्कस डोंट बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट एट द रेसिडेंशियल साइट. जब कस्टमर पर्टिकुलर डेवलपर की साइट पर जाता है, आपने एक साइट तो प्लान किया नहीं होगा, आपने वो एरिया के 3-4 साइट प्लान किए होंगे साइट विजिट. तो आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी साइट विजिट करवाते हैं. जस्ट ऑब्जर्व देयर जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज,
amount of interest they are taking while the builder is explaining the brochure. वो सारा स्टडी का मामला है, आप स्टडी कर सकते हो उस टाइम उसको. फिर यू नीड टू कैच द पॉइंट जहां पर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था. कोई कस्टमर को ऐसा है कि सर बालकनी है, तो उसका इंटरेस्ट बालकनी है. किसी को ऐसा लगता है कि किचन बहुत छोटा है यार, तो आपको ये पकड़ना है कि कौन सी जगह पर किचन बड़ा था. कोई ये क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मतलब एमिनिटीज में मजा नहीं आया. तो आई मीन सी इन रेसिडेंशियल थिंग देयर आर हेल नंबर ऑफ द माइंड, जिसका थॉट प्रोसेस अलग अलग दिशा में चल रहा होगा. एंड इफ इट इज अ फैमिली ऑफ 4, यू नीड टू कन्विंस 4 डिफरेंट माइंड. यू डोंट नीड टू कन्विंस सिंगल माइंड. आपको 4 लोग को कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग मान लेंगे, राइट. सो एंड वाइल ड्यूरिंग देयर साइट विजिट, वो इनफॉर्मल डिस्कशन अपना करते ही रहेंगे अपने फैमिली मेंबर के साथ. तो उनका बजट आप एक बार नोट कर लीजिए. दैट इज द डू. वन मोर स्लाइड ऑफ द डू इज providing the assistance in selection of their property after understanding their requirement. अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे 2 BHK चाहिए, मेरा बजट है 45 लाख, इट इज गुड. देन यू हैव टू आस्क सर आपका एरिया लाइकिंग कौन सा रहेगा एंड व्हाट विल बी लाइकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन, नियर पोजीशन और रेडी पोजीशन. उसमें से भी कस्टमर ने व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, वो इंट्रोगेशन जैसा बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए. यू हैव टू अडॉप्ट अ सेमी फॉर्मल अप्रोच or casual as and when required, not absolutely casual. Then formal or semi formal will work for you. And one golden rule is there. If client is telling from their mouth कि हम लोग ने 20 प्रॉपर्टी देख लिया है, मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि then don't waste your energy behind such client. क्योंकि 20 से ज्यादा प्रॉपर्टी जिसने देख लिया है, वो कभी भी 21वें से लेकर 30वें तक कंक्लूड नहीं करेगा. What happen? It is a normal human nature कि उसको कंपैरिजन के लिए कुछ दिया जाएगा. If it is a 3 things to compare or 5 things to compare, it will be an easy exercise for them to select one out of it. लेकिन already he has been given 20 different choices, yet he or she has not selected. There is no logic that 21st or 30th choice will work for him. उसको किस स्कीम का गेट पसंद आया होगा, किस स्कीम की एमिनिटीज पसंद आई होगी, किस स्कीम का हॉल पसंद आया होगा, और सब चीज एक जगह पर नहीं मिलेगा उसको. सो हाँ, कस्टमर को आप 6 से लेके 12 ऑप्शन तक डेविएट कर सकते हो. ये कोई थंब रूल नहीं है, बट ऑन एन एवरेज इन दीज 10 years व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, customers are just closing their choice if they have seen 6 to 12 properties. 12 से ऊपर थोड़ा रिस्क है और 20 के ऊपर पूरा रिस्क है, फिर वो कभी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा अपनी लाइफ में, राइट. देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन फाइनेंस, मतलब हमको फाइनेंस नहीं करना है, हमको उसका केस स्टडी करके, ज्यादातर डेवलपर के पास बैंक से एपीएफ और टाई अप होके रखे हैं. फॉर्चुनेटली अवर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो हैविंग अ विंग विच इज हैविंग अ टाई अप विद डिफरेंट बैंक्स एंड एनबीएफसीज. तो कस्टमर्स को कभी क्या होता है कि 1-2 लाख का बजट का इश्यू होता है, तो ऐसे मामले में उसको पता है कि उसको लोन एचडीएफसी या एसबीआई दे रहा है, लेकिन 1-2 लाख फिर भी कम पड़ रहा है. तो ऐसे मामले में देयर आर मेनी बैंक्स एंड एनबीएफसीज, वो 1-2 लाख ज्यादा लोन या फाइनेंस दे सकती है. तो यू कैन प्रोवाइड असिस्टेंस इन दिस ओनली. प्रोवाइड द फीडबैक अबाउट द डेवलपर, देयर प्रीवियस स्कीम, द क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम, द प्रीवियस क्लाइंटल, ये स्कीम का क्लाइंटल मतलब वो डेमोग्राफी स्कीम का, राइट. फॉर एग्जाम्पल गोदरेज प्रॉपर्टीज इज रिनाउंड डेवलपर. कोई भी कस्टमर अभी गोदरेज को मिला नहीं है अहमदाबाद में, मतलब दे आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद द एम्प्लॉयज ऑफ द गोदरेज प्रॉपर्टी. बट बाय स्टेइंग इन पुणे, बाय स्टेइंग इन मुंबई, बाय स्टेइंग इन यूके, दे आर बुकिंग द प्रॉपर्टी समवेयर देयर इन द अहमदाबाद, राइट. बिकॉज द एजेंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज का काफी मतलब मोर देन 50% सेल्स कम्स फ्रॉम द चैनल पार्टनर्स. So they are the channel partners who are briefing about the particular builder, the demography of the builder and the history of that particular builder. अगर आपके पास ऐसा इंफॉर्मेशन है तो वो कस्टमर को थोड़ा कॉन्फिडेंस या मोरल बूस्ट करने में सपोर्ट करेगा. एंड देन कीप अपडेटिंग अबाउट द एरिया डेवलपमेंट कि सर आप 2 साल पहले शायद से ये एरिया में आएंगे तो रोड भी नहीं मिलेगा, अभी देखिए रोड बन गया. या तो 5 साल पहले इधर कुछ नहीं होता था, 5 साल पहले इधर हो सकता है कि लैंड का प्राइस लेस देन 1000 रुपीज स्क्वायर फीट था, आज की तारीख में दे आर कोटिंग 3000, 3200, 3400. सो कीप अपडेटिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज कैटर कर दो, बट जहां पर जो भी नेसेसरी लगे. एंड अगेन आई एम टेलिंग ऑल इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ नॉलेज
and information you're having with. And let we quickly look at the don't at the real estate side. Don't at the real estate side, being a real estate agent, includes refrain, matlab to make the distance from the client who are carrying their vastu guru, who are carrying their interior designer, who are carrying their architect. Because what I have experienced is I don't have any problem with these three categories, or there is no offense on these three categories. बट ये तीन कैटेगरीज वो सीन बिगाड़ने वाला काम करेगी. इंटीरियर को स्ट्रक्चर डिजाइन में कुछ पता नहीं चलता, उसको सिर्फ ऐसा ही लगता है कि मैं हॉल कितना अच्छे से सजा सकता हूँ, या तो आर्किटेक्ट को ऐसा लगेगा बिकॉज दे आर मूविंग विद देयर ओन ईगोस, अरे यार डोर का अलग गलत पोजिशनिंग है. अब उसको पता नहीं है ना एक्चुअल ड्राइंग में क्या था और क्या लिमिटेशन थे, तो उसका एक कमेंट आपका पूरा सीन बिगाड़ सकता है. या पहली ही विजिट में वास्तु गुरु जी आए, बोलते हैं नहीं यार ये पूर्व पश्चिम वाला दरवाजा है, पूर्व वाला है एंड गॉड नोस, तो आपका काम बनेगा नहीं. तो अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि हमारा आर्किटेक्ट है, हमारा इंटीरियर है, सर हाथ जोड़ दीजिए, आप उस दिन समझ लीजिए कि आपका बर्बाद होगा. बिकॉज यू कैन नॉट कन्विंस दिस ऑडियंस, राइट. और उनको जो चाहिए वैसा कोई डेवलपर बना के देगा नहीं. देन try to explain the client about the positive things, but do not go into the argument with them. उनके साथ आर्ग्यूमेंट मतलब लेट से डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट में अंतर होता है. डिस्कशन इज ऑलवेज वेलकम बट रिफ्रेन फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, डू नॉट स्पीक ओनली अबाउट द डेवलपर, देयर क्वालिटी, और मतलब ये बोलता है ना वी आर लिटरली चैंटिंग फॉर द डेवलपर, उसकी माला जप रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बिल्डर है, बहुत ही अच्छी स्कीमन हो. It will create adverse impact in the mind of customer. Try to be a neutral, balanced approach. Even if you want to favor a developer, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को फील ना आए कि सिर्फ आपने डेवलपर का ही बोला है. Because then they expect you to intervene as far as the rate negotiation is concerned on the given properties and the areas. So these are do and don't of the property of the residential. Next session we will discuss commercial and plotting scheme. So now we will look at some of the points to consider while going for the commercial property and followed by the plotting schemes or the land property. Commercial is operating polar opposite to the residential, because let's say, as I told earlier in the discussion, a client is thinking by heart if the property is residential, but most of the time a client is thinking by mind if the property is commercial, because the word commercial means profit and loss, investment and rate of return on investment, or everything matter in the commercial property or commercial things, right? So let's say the professional agent should first of all understand the objective of the client who would like to have the commercial property. Now objective may be different, objective residential के भी होते हैं, but if we narrate the objective of the residential property, either upgradation of the property, मतलब 2 बेडरूम में रहता हूँ 3 बेडरूम में जाना है, और इन्वेस्टमेंट बिकॉज मेरा सैलरी ज्यादा है, होम लोन के लिए मुझे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए, और आई एम एन एनआरआई, जब भी इंडिया आता हूँ साल में एक बार तो मुझे प्रॉपर्टी रहने के लिए चाहिए. ये 3 ही कन्फाइंड ऑब्जेक्टिव रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के हो सकते हैं, बट कॉमर्शियल में ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई बिजनेस, आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश वन मोर ब्रांच इन पर्टिकुलर सिटी, आई वॉन्ट टू गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई एम द टिपिकल इन्वेस्टर और मैंने मेरा पैसा कहीं पर रख के किराए का इनकम या तो रेंटल इनकम चाहिए. दिस कुड बी द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट एंड. देन विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर ऑब्जेक्टिव आप उसको कैटर करना चालू नहीं कर सकते हैं, राइट. देन रेसिडेंशियल में इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि आप टेलीफोन पर एक बात करेंगे, उनका रिक्वायरमेंट समझेंगे, फिर आप क्लाइंट के साथ 4-5 जगह जाएंगे, फिर क्लाइंट अपना टाइम लेगा, अगर बात बनी तो ठीक, वरना अगले हफ्ते और कहीं जाएंगे. सो कॉमर्शियल में यू डोंट possess that luxury. Commercial में when you are calling the client, it is expected from your side to give some sort of essential brief like the area. अब रेसिडेंशियल में हो सकता है कि आपने एक ही एरिया में 6-7 फ्लैट या बंगलो या प्रॉपर्टी दिखाए. कॉमर्शियल में अगेन एक ही एरिया में 3 या 4 ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, बिकॉज
Then sixth or seventh option, if you are going to visit with the client, either it will be off road, या तो फिर एरिया चेंज हो गया होगा, या तो फिर कंस्ट्रक्शन का स्टेटस एकदम अलग होगा जो क्लाइंट को चाहिए. मतलब क्लाइंट इज लुकिंग फॉर रेडी पोजीशन और आपको दिखा रहे हैं उसको अंडर कंस्ट्रक्शन. सो यस, इन रेसिडेंशियल क्लाइंट वुड लाइक टू वेट फॉर 12 मंथ्स, फॉर 24 मंथ्स पैसे देने के लिए. कॉमर्शियल में हर एक क्लाइंट उतना रेडी नहीं होता है, बिकॉज from the next month, from the next quarter, or for the next year, they would like to make money by doing the business, by expanding the business at particular area. तो कॉमर्शियल में ये सारा लग्जरी रेसिडेंशियल जितना हमारे पास नहीं होता है. The thing which the real estate consultant has to move with is the, first of all, try to identify the prospective client out of the leads you have acquired or you have generated. Then do a verification call whether they are actually looking for the commercial property. Try to understand their objectives, and then try to affix a small meeting. Small meeting could be at your office or at their office. Then meet for 15 or 20 minutes. Be precise while going for the meeting. मतलब अरे इंडिया का सिस्टम है आधा घंटा लेट, वैसा कॉमर्शियल में बिल्कुल भी नहीं चलता. आप वहां पर जाइए, वेट फॉर सम टाइम एट द रिसेप्शन. इफ दे आर अलाउइंग यू टू एंटरटेन, आप उसको दिखाइए. ये 4-5 ऑप्शन है सर. ब्रीफिंग अबाउट द एरिया, ब्रीफिंग अबाउट द स्कीम. ये एरिया में 4-5 स्कीम है, अभी भी आपने डेवलपर का नाम रिवील नहीं किया है. यू आर जस्ट ब्रीफिंग अ वर्चुअल थिंग कि मेरे पास सर ये एरिया है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वस्त्रापुर एरिया. आई एम हैविंग 6 प्रॉपर्टीज कॉमर्शियल इन द वस्त्रापुर रेडियस, इन द वस्त्रापुर एरिया, जिसमें से 3 आर दी रेडी पोजीशन, 3 में से 1 है रीसेल वाला, 2 नए हैं. देन आउट ऑफ द रिमेनिंग 3, 1 प्रॉपर्टी मे टेक 18 मंथ्स फॉर द पोजीशन एंड 2 प्रॉपर्टीज आर जस्ट स्टार्टेड. तो आपको कौन सा चाहिए? द एवरेज साइज विल बी रेंजिंग फ्रॉम 300 स्क्वायर फीट टू 3000 स्क्वायर फीट. द एवरेज प्राइस पर ऑफिस वुड बी दिस टू दैट. और इफ एट ऑल दे आर लुकिंग फॉर द शोरूम्स, तो हो सकता है कि 6 प्रॉपर्टी में से सिर्फ 4 के पास ही शोरूम रहेगा, 3 के पास ही शोरूम रहेगा. इफ इट इज अ मैटर ऑफ शोरूम, तो पर्पस क्या उनका इन्वेस्टमेंट है, उनको खुद का ब्रांच ले जाना है. अगर ब्रांच ले जाना है तो क्या क्या पॉजिटिव या प्लस पॉइंट हो सकते हैं वो पर्टिकुलर स्कीम के, वो पर्टिकुलर रोड के, वो पर्टिकुलर एरिया के. बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग मनी टू अर्न द मनी आउट ऑफ इट, राइट? So, as I have told earlier, the client of commercial property are thinking from the mind in place of thinking from the heart. And for the small office, even you can expect a client can spend equivalent budget behind the interior and decoration. I got remember this place, the famous local sweet manufacturers at Ahmedabad is KBM, Kanwai Bhogilal Mulchand. So basically they are into manufacturing and catering of the sweets, which is perishable by nature. But उन्होंने इंटीरियर के पीछे शोरूम जितना ही पैसा इन्वेस्ट किया है, right? So they are actually a client who are having logic behind spending a single rupees. Let me look at the do for the real estate agent for the commercial property. So let's say at your first visit, they you have to ask that what are their likings. And let's say like residential property, मतलब average client in Ahmedabad would like to visit 3 to 4 times if they are having an idea to purchase a flat or a villa or anything. At least they are visiting and revisiting 3 to 4 times because they are thinking from the perspective of living a life at that particular place. In case of commercial, the client would not like to visit more than 3 times. हो सकता है पहली बार उन्होंने टाइम दिया पर्टिकुलर साइट पर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल मीटिंग विद देयर ऑफिस. यस, इट इज गुड प्रैक्टिस इज टू हैव द पर्सनल मीटिंग एट देयर ऑफिसेस और योर ऑफिसेस. देन यू शेड्यूल द साइट विजिट. तो आपने जितना भी उसको बैक में समझाया था, आपने जितना भी होमवर्क उसके सामने किया था, इट विल टेक लेसर टाइम फॉर देम टू कंक्लूड यस और नो. अगर यस है तो इट विल योर एफर्ट वर्थ, नो है तो भी वर्थ इसलिए है कि यू गॉट द क्लैरिटी कि ये सर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, राइट? देन यहां पर पोलर ऑपोजिट टू द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इफ द क्लाइंट वुड लाइक टू रीविजिट द प्रॉपर्टी, आप बोल सकते हैं, आप फोर्सफुली नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं कि सर आपको
आपका इंटीरियर को लाना है तो ला सकते हैं, आप अगर कोई वास्तु गुरुजी को बिलीव करते हैं तो ला सकते हैं। वाई? रेसिडेंशियल में मैंने ही बोला था कि आप इनसे दूर रहिए, कॉमर्शियल में आप सजेस्ट कर सकते हैं, फोर्सफुली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक कन्फाइंड स्पेस है, छोटा सा स्पेस, उसमें वो बंदे को अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है और वहां से उसको पैसा कमा के अपनी लाइफ में बेटरमेंट करना है। तो फॉर देम, लेट्स से वी ऑल नो द बिल्ट अप एंड सुपर बिल्ट अप फॉर्मेलिटीज एंड द jargons of built up and super built up. If you would tell them कि अगर आप इंटीरियर को लाना चाहते हैं तो ठीक है, ला के आप एक बार प्लान दिखा सकते हैं और वो आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देगा ऑफिस इंटीरियर का, तो उनके दिमाग में बैठेगा कि नहीं, these gentlemen और these scheme are having no problem at all if I am carrying my own sources at this particular site, right? If the client is investor, उसको अपना ऑफिस में बिजनेस नहीं करना है, शोरूम में खुद का दुकान नहीं लगाना है, उसको सिर्फ रेंट चाहिए, तो बेटर टू मूव विथ दी प्रिवेलिंग रेंटल फिगर कि सर ये रोड में 4-5 हैपनिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग है, होने को तो 10-12 होंगे, लेकिन जैसे अहमदाबाद में बहुत सारे मॉल है, लेकिन 2 या 3 मॉल ही अच्छा कर रहे हैं, बाकी सारे मॉल दे आर स्ट्रगलिंग, राइट, इफ वी इग्नोर द कोविड इरा। तो वैसा ही कॉमर्शियल में है, इफ देयर आर 12 और 13 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज एट पर्टिकुलर एरिया, ओनली 2 to 3 प्रॉपर्टीज और 4 प्रॉपर्टीज आर डूइंग वेरी वेल, तो आप बोल सकते हैं सर ये बिल्डिंग में द पर स्क्वायर फीट रेंटल इज 40 रुपीज, पुराने बिल्डिंग में इट इज 30 रुपीज, इफ यू एज्यूम 40 रुपीज एंड दिस इज व्हाट योर इन्वेस्टमेंट, तो आप कंपेरेटिव चार्ट अगर उसको दिखाएंगे विच इज एब्सोल्युटली लॉजिकल प्रिवेलिंग, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा बात जम जाएगा। देन आप एक और भी कर सकते हैं, बोलेंगे फॉर एग्जांपल साउथ भोपाल और शेला एरिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग एरियाज ऑफ अहमदाबाद, आप बता सकते हैं कि सर देयर आर ओनली 2 to 3 नेशनलाइज्ड बैंक्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अगर आप शोरूम लेते हैं तो देयर आर चांसेस कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है या सारस्वत बैंक है, मुथूट फिनकॉर्प है, दे वुड लाइक टू हैव देयर ऑफिसेस। तो अगर इन्वेस्टर को आप सही तरह से टैप करेंगे, इट विल बी अ ड्यूअल एडवांटेज। कैसे ड्यूअल एडवांटेज? सबसे पहले यू कैन क्लेम योर कंसल्टेंसी फी फ्रॉम द डेवलपर इफ यू आर सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, डेवलपर्स प्रॉपर्टी टू द इन्वेस्टर। सेकंड, वही इन्वेस्टर का प्रॉपर्टी यू आर हैविंग इन योर पोर्टफोलियो, अगर किसी कॉर्पोरेट को, किसी वेंचर को रेंट पर चाहिए तो। बिफोर 4 years देयर वाज अ फॉर्मेट जस्ट डॉक्स करके आया था 4 साल पहले, उसने एक साथ अहमदाबाद में 6 से 7 आउटलेट ओपन किए थे। तो इफ यू आर हैविंग गुड कॉर्पोरेट कनेक्शंस, इफ यू आर हैविंग गुड कॉर्पोरेट टाई-अप्स, you will be having some sort of knowledge, oh yes bank is looking for one more branch in particular area। अब वो पर्टिकुलर एरिया में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बन रही है और आपके पास एक इन्वेस्टर है, तो आप सीधा सा बोलेंगे ना, सर परचेज दिस प्रॉपर्टी, आई एम हैविंग दी पर्सन हु वुड लाइक टू टेक दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑन रेंट। तो ये होता है, आई हैव सीन मैनी इन्वेस्टर्स, पूरा पेंटालून जिनका है और इनको किराया मिलता है, राइट। Now we'll look at the don'ts for the real estate agent in the commercial side and do not go into the debate about the percentage of the built up and super built up. Let's say every developer is having their own formula to count the built up and super built up area apart from the formula which have been affixed by the RERA। हो सकता है हर एक डेवलपर का, I have observed that Godrej Properties would like to offer on the carpet, वो super built up नहीं बोलते हैं। फिर कोई डेवलपर होगा सुपर बिल्टअप में बात करेगा, कोई बिल्टअप में बात करेगा। तो लीव दिस पर्टिकुलर मैटर, इट इज नॉट मैटर ऑफ डिबेट और डिस्कशन, बिकॉज लेट्स से इफ कस्टमर इज क्लियर, दे वुड लाइक टू कमेंस देयर बिजनेस, दे विल नॉट गो इन डिटेल। सेकंडली, डू नॉट फोर्सफुली कन्विंस द क्लाइंट अबाउट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इज दिस ऑडियंस हु आर वेरी क्लियर इन देयर ऑब्जेक्टिव, लेट्स से इफ ही इज अ ज्वेलर and he is not convinced in particular area, particular scheme about their planned showroom of the jewelry, forcefully करके कोई फायदा नहीं है, because then they will smell, इसके पीछे आपका और भी कोई मीनिंग रहेगा, right? And third, which is quite crucial, is do not give the false picture about the future rent or future appreciation or future rental income, because जैसे आप बिजनेस में है वैसे वो लोग भी बिजनेस में है। If you can draw the rational figure, you can draw the rational diagram,
of the coming future or coming possibilities. You cannot draw the false or rosy picture because उनको मतलब हम जैसे 25 लोग उनको रोज मिलते होंगे, right? And finally, if you go for the plotting side, total different mindsets than the residential property and the commercial property. First of all, let me discuss who could be the client for the plotting scheme. कौन हो सकता है? First of all, the client who are having their own home in particular city to live with, the client who possess at least one four-wheeler, right? Because plotting schemes are in vicinity from 10 kilometers to 40 kilometers outside particular city. Then the customers who are having the disposable income without the rental expectations. देखा आपने, मतलब डिस्पोजेबल इनकम इन्वेस्टर के पास कॉमर्शियल के लिए है, बट उनका एक्सपेक्टेशन है रेंट वाला. डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास हो सकता है एक नया फ्लैट लेने के लिए, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है रेंट का. इन केस ऑफ लैंड, द एसेंशियल फैक्टर इज डिस्पोजेबल इनकम विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रेंट. रेंट वाला मामला नहीं होना चाहिए. एंड द क्लाइंट हु इज द मैच्योर इन्वेस्टर एंड हु इज हैविंग लेजर टाइम. मतलब प्लॉटिंग के मामले में ज्यादा होता है कि पर्सन वुड लाइक टू स्पेंड अ वीकेंड ओवर देयर एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और वंस इन अ क्वार्टर. तो भाई वीकेंड के लिए वीकेंड होना जरूरी है. वी रियल एस्टेट एजेंट आर नॉट हैविंग द वीकेंड बिकॉज द वीकेंड इज द क्रूशियल वर्किंग डे फॉर अस. बट हमको ऐसे क्लाइंट चाहिए जिनके पास वीकेंड टाइम स्पेंड करने के लिए होगा, और इन लोग के पास पैसा भी होना चाहिए, इन लोग के पास रेंटल का एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए, अपना गाड़ी होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए. दोस कुड बी द ऑडियंस. मतलब फिर कोई बोलेगा कि सर मुझे लोन चाहिए और लोन से प्लॉट लेना है, देयर आर सम कस्टमर्स, बट उसके पीछे फिर बहुत जान लड़ा के फायदा नहीं है. बिकॉज प्लॉटिंग लोन आर हैविंग डिफरेंट मैट्रिक्स. मतलब वो एक तो पूरा नहीं मिलता है, देयर आर सम जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, मतलब इतने स्क्वायर किलोमीटर के बाहर नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी, वो सारे राइडर्स लगते हैं उसको. सो व्हाई द पर्सन वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द प्लॉटिंग और लैंड स्कीम. आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है प्लॉटिंग के पीछे? देयर कुड बी द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर इज नॉट कैपेबल टू एक्वायर द बिगेस्ट लैंड पीस. प्लॉट इज द सब पार्ट ऑफ द डिफाइंड लैंड विच इज एन ए बाय नेचर, राइट? मतलब आदमी पूरा एकड़ में या बीघा में जमीन नहीं ले सकता है. देन एंड देन ओनली दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन स्क्वायर यार्ड्स. द अनदर लॉजिक इज if person is not able to provide the personal security to the land they have purchased, मतलब फाइनेंशियली कोई साउंड रहेगा जिसने 30-35 करोड़ इन्वेस्ट करना है, बट उसके पास सिक्योरिटी नहीं है. आई मीन सी व्हाट वी आर टेलिंग इज मनी पावर एंड मसल पावर. मनी है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो भी लैंड में इन्वेस्टमेंट बेकार है. तो छोटा छोटा इन्वेस्टर जिसके पास बड़ा लैंड एक्वायर करने का कैपेसिटी नहीं है, अगर लैंड एक्वायर किया तो सिक्योरिटी का नहीं है, बिकॉज मेनी प्लॉटिंग स्कीम्स वुड लाइक टू हैव 24 आवर सिक्योरिटी, राइट? देन पर्सन हु वुड लाइक टू लिव अ वीकेंड लाइफ आउटसाइड द सिटी. ये हो सकता है राइटर, क्रिएटर, ये हो सकता है कोई डॉक्टर, ये हो सकता है कोई टैक्स प्रैक्टिशनर्स who actually would like to have some sort of change outside of their hectic routine. Then person who with small investment would like to get the sense of ownership. मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन को बोलेंगे जिसके पास मकान और गाड़ी दोनों है कि सर आपका कोई फार्म हाउस हुआ, तो फार्म हाउस उसके लिए बहुत बड़ी बात है. बट देयर आर प्लॉटिंग स्कीम्स हु आर बजटेड प्लॉटिंग स्कीम्स, उसमें साइज शायद से छोटी हो सकती है प्लॉट की, बट उसको एक इमोशनल फीलिंग है, कह लो आई पजेस द पीस ऑफ लैंड. और आप देखेंगे तो अर्थक्वेक के बाद या कोविड के बाद कस्टमर्स का थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ है ना. वो छोटा तो छोटा, लेकिन उनके पास एक जमीन से जुड़ा हुआ मकान होना चाहिए. दैट इज व्हाट दे बिलीव, एंड फॉर दिस रीजन द जियोग्राफिकल डिस्टेंस डजंट मैटर. सो रादर इफ वी आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट द डिफरेंट जियोग्राफी, इट इज द गुड टाइम टू सेल द प्लॉटिंग स्कीम्स पोस्ट कोविड वाला एरा. एंड फाइनली द पर्सन हु वुड लाइक टू हैव देयर स्टेटस क्वो. मतलब मैं एक न्यूक्लियर फैमिली हूँ, आई मीन हु आर हैविंग द कॉर्पोरेट लाइफ और बिजनेस लाइफ, लेकिन मुझे मेरा एक स्टेटस क्रिएट करना है अपार्ट फ्रॉम द क्लब मेंबरशिप, अपार्ट फ्रॉम माय ड्रीम होम, अपार्ट फ्रॉम माय ड्रीम कार. अगर मैंने एक छोटा सा फार्म हाउस लिया काफी सारे लोग को, एंड दे आर फ्रिक्वेंटली कॉलिंग देयर फ्रेंड्स फॉर बर्थडे पार्टीज और फॉर एनी फंक्शंस,
and by that token they would like to have the status in their crowd. So do at the plotting scheme. Plotting site visit, one need to require a tremendous homework before starting from particular point. रेसिडेंशियल में हो सकता है कि आप कैजुअल वे में जाएंगे, कस्टमर को मिलेंगे और चले जाएंगे साइट विजिट पर. कॉमर्शियल में ठीक है, आपने होमवर्क किया, कस्टमर को साथ मीटिंग किया, फिर कस्टमर को आप प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, बात बनती भी है नहीं भी बनती है. प्लॉटिंग में एब्सोल्यूट होमवर्क इज क्वाइट एसेंशियल रिक्वायरमेंट. आप जो भी लीड मिलती है आप लोगों को पहले फोन कॉल करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर मेंटालिटी, try to brief about the scheme you are pitching of the plotting scheme. Sir, it is situated 40 kilometers outside of the Ahmedabad, or in times of minute, it is 45 minutes drive away from this particular destination. Then you have to give a reference of landmark. That reference should be absolutely outskirts. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर कालोपुर रेलवे स्टेशन से ये 80 किलोमीटर दूर है, बात नहीं बनेगी. आप ये बोल सकते हैं कि सर from Shantipura circle, from Sanathal circle, it is 25 kilometer away, it is 40 kilometer away. Then yes, right? If the person is non-resident of particular city, then yes, you need to give some sort of renowned landmark. कि सर एयरपोर्ट से बाहर शांतिपुरा सर्कल इतना किलोमीटर, जहां तक अहमदाबाद है, और अहमदाबाद और वहां से इतना आगे. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मुंबई, विरार और दहानू इज द आउटस्कर्ट. तो आप बोलेंगे कि मेरे पास पालघर में प्लॉटिंग स्कीम या विला है और मैं मुंबई का नहीं हूं, तो मुझे क्या बोलेंगे, सर विले पार्ले में एक सांता क्रूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सांता क्रूज में एयरपोर्ट से दहानू इतने किलोमीटर होता है और दहानू तक तो मुंबई है, वहां से पालघर 60 किलोमीटर अवे. एक्चुअल वो हो सकता है 100 किलोमीटर, लेकिन आपने जियोग्राफिक लिमिटेशन फिक्स कर दी है सिटी के, राइट. कीप द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द रॉ लैंड and NL end while meeting और while phone call और while traveling. सबसे पहले तो कस्टमर को आप एजुकेट कीजिए, सर दिस इज द प्लॉटिंग स्कीम. आप फर्स्ट होम की तरह यूज अभी नहीं कर सकते, या तो देयर आर चांसेस कि आप इतने साल बाद इसको फर्स्ट होम बना सकते हैं. एज ऑफ नाउ इट विल बी आइदर वीकेंड और इट विल बी आइदर अ प्लॉटिंग स्कीम, प्लेन एंड रॉ प्लॉटिंग स्कीम. फिर उसके बाद एरिया जहां पर वो प्लॉटिंग स्कीम है, वो एरिया का डेवलपमेंट ब्रॉड सेंस में, वो एरिया में लैंड का प्राइस पहले क्या हुआ करता था अगर वो एग्रीकल्चर लैंड था, एनए होने के बाद आज से 5 साल पहले क्या प्राइस था और अभी क्या हो रहा है. देन सम इंडस्ट्रियलाइजेशन और सम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और सम सेंचुरीज if they are in the vicinity of particular plotting scheme. For example, there are lot many plotting scheme near one of the bird sanctuary which is called Nal Sarovar. So when you are briefing about the customer, you have to tell, sir, Nal Sarovar is renowned bird sanctuary. The plotting scheme is 10 kilometer away from this bird sanctuary. So over there, the distance from the city doesn't matter. Or let's say Sanand is one of the town which was having the automobile hub once upon a time. So you can say, sir, this plotting scheme is some 12 kilometer away from the Ford or Tata Nano. In case of Bagodara, it is the logistic park. So you can give the reference, sir, this is a logistic park which is actually there. Our plotting scheme is few kilometer away from the logistic park. Or let's say Dholera SIR, once upon a time it was a dream project from government of Gujarat. Even though government has not put their weapon, but you can tell, sir, this is the future city government is planning to build, right? So these are some of the figures, some of the rough sketch of the area which you need to draw in front of the client at the physical meeting before the visit or while during the site visit, right? The crucial thing is, you have to give brief about the approx budget and payment condition of the plotting scheme. Because plotting में loan could be there, could not be there. You have to brief about the budget and the time in which you have to pay the payment. Then at the meeting you have to show the available inventory, because let's say if your customer are very choosy, I would like to have the plot near the clubhouse, plot on the main road, plot on the corner. If it is not there in the availability, then there is no logic to visit. Then to brief about the small things like amenities or clubhouse,
You need to brief about the committed developer, development from the developer side. प्लॉट में क्या रहेगा, वाटर कनेक्शन विल बी देयर और नॉट देयर, बाउंड्री रहेगा कि नहीं रहेगा, बंगलो प्लान पास होगा कि नहीं होगा. You can tell this and then you can go for the site visit of the plotting scheme. In next slide, we will discuss the don't for the plotting scheme. So finally, the last slide of this particular session is don't for the real estate agent at the plotting scheme. अभी तक वी हैव डिस्कस कि आपको बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट प्लॉटिंग के मामले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, कैसे पिच करनी है, क्या उसको समझाना है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले, डू नॉट एंटरटेन द क्लाइंट हु इज नॉट हैविंग द क्लियरिटी अबाउट द इन्वेस्टमेंट. मतलब लेट्स से प्लॉटिंग इज अ ड्रीम फॉर एवरी पर्सन हु इज मूविंग ऑन दिस पर्टिकुलर अर्थ. आप बोलेंगे कि सर आपको फार्म हाउस चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए भाई, बट उसके पास क्या क्लैरिटी है, उसके पास क्या बजट है. काफी सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनके पास एम्पल बजट है लेकिन दे आर नॉट क्लियर बिकॉज प्लॉटिंग डजंट कम विद द रेंटल इंश्योरेंस. मतलब रेंटल इंश्योरिटी है नहीं उसके पास, तो कोई बोलेगा नहीं रेंट नहीं मिलता है तो क्या लेना चाहिए. तो ऐसे लोग को ठीक है, आप एक फिजिकल मीटिंग करेंगे बिफोर साइट विजिट. अगर उसका ऑब्जेक्टिव रेंट वाला है तो डोंट प्रेशराइज देम फॉर द प्लॉटिंग, राइट. सेकंड थिंग, उसको सब कुछ चेक से देना है. So you have to figure out how many are the plotting schemes who would like to have every payment in check, every payment on paper, because हो सकता है कि यहाँ पर 50-50, 60-40 वैसा स्प्लिट हो जाएगा डेवलपर के बीच में. I know few developers who are taking every single rupee on check. On the polar opposite, कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनके पास ये लग्जरी नहीं है, वो लोग नहीं कर सकते, राइट. Secondly, and the most important, do not entertain a group visit of the customers. Either they belongs to a family, single family, or do not make the crime. I'm repeating the word crime. If there are two different groups, some two people from X group, some two people from Y group, don't club them and plan a site visit. Because क्या होगा, किसी भी एक आदमी का नेगेटिव रिमार्क will ruin your site visit. मतलब दो अलग ग्रुप में as they don't know each other, they are freely sharing the thoughts, because फिर उनके लिए एक वीकेंड पिकनिक हो जाएगा, वो भी आपके खर्चे के ऊपर. और जो फैमिली है जिनमें 4-5 बच्चे हैं और 2-3 लेडीज है, तो ऐसे ग्रुप को तो ओमिट ही कीजिए, बिकॉज यू आर हियर टू गाइड देम अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट. वंस दे विल बी ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्लॉटिंग स्कीम, उसके बाद वो जितने लोग को चाहे ले जा सकता है, बट आप एक रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए नंबर को कि सर वी विल गो ऑन द प्लॉटिंग स्कीम, 3 people फ्रॉम योर साइड कैन ज्वाइन, 2 people फ्रॉम योर साइड कैन ज्वाइन. फिर ये अलग बात है कि वो बोलता है नहीं मेरे पास भी एक बड़ा वाला गाड़ी है, मैं अपने हिसाब से आऊंगा, आप अपने हिसाब से, तो ठीक है, तो आने दीजिए उनको. अगर आपको ले जाना है तो यू रिस्ट्रिक्ट द नंबर, बट डू नॉट मेक द क्राइम टू क्लब 2 different ग्रुप इन वन साइट विजिट और 2 different पर्सन इन वन पर्टिकुलर व्हीकल. ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कि हर एक का दिमाग अलग अलग दिशा में चलता है. अब किसी ने बोला नहीं यार बगोदरा में तो नहीं लेना चाहिए. अब ये कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं है, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हम लोग हैं, लेकिन ये कस्टमर किसका एडवाइस जल्दी मानेगा, ये भाई का. बोलेगा बगोदरा में नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, राइट. फाइनली, डू नॉट ओवर कमिट अबाउट द रेट एप्रिसिएशन इन द फ्यूचर अबाउट द पर्टिकुलर लैंड. मतलब देखो, हर एक प्लॉटिंग स्कीम या हर एक लैंड, जितनी भी प्लॉटिंग स्कीम है ज्यादातर वो रूरल एरिया में होती है. नाउ रूरल एरिया इज हैविंग डिफरेंट प्लान्स ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. गवर्नमेंट ने कुछ रूरल बेल्ट को इंडस्ट्रियल बेल्ट डिक्लेयर किया होगा, कुछ रूरल बेल्ट को लेट्स से वाइल्ड लाइफ बेल्ट मतलब आइडेंटिफाई किया होगा, कुछ रूरल बेल्ट को मतलब जहां पर पानी नहीं है पानी भेज रहे होंगे, इंफ्रा नहीं है रोड या इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे होंगे. तो गवर्नमेंट बदलती रहती है, विद इन द सेम गवर्नमेंट प्लान भी बदलते रहते हैं. तो डू नॉट ओवर कमिट अबाउट द एप्रिसिएशन, बिकॉज यू विल नेवर नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 years. कॉन्क्रीट प्लान रहेगा लेकिन गवर्नमेंट बदल के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, राइट. देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स जो होल्ड पर ही है, चले थे तब बहुत बढ़िया थे, लैंड प्राइस अप्रिशिएट हो गई, अभी बैठ गए तो बैठ गए. एंड पोलर ऑपोजिट टू दैट, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल bullet train is a project between Ahmedabad and Mumbai, and the track of bullet train is passing from these many villages.
तो ये अगर आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज है तो विच कैन प्ले अ क्रूशियल रोल in selling or not selling of the particular product scheme. So here we are taking a pause for the discussion. I think you have enjoyed all the different aspects and the points to be noted in the mind. And this is a beginning. Let's say, in order to judge the client, in order to identify the client's mentality, it requires the immense site visit handling, much of the exposure of the different sites, and much of the interaction with the different clients and the customers. Let's say every time when we will move in the market, we will keep our eyes and ears open. It means that we will be there in learning phase only. At the end of 4, 5, or 6 years, you will be one of the person who can, who can who can explain the customer from any different aspect, who can quickly convince the customer, who can draw the main advantages, who can hide the disadvantages. Yes, it requires a matter of practice, matter of your, physical movement in the market. So all the best for your career. And for any related question, you may at any time come back to the IPW, that is Indo Property World. You can put your query. We will try to resolve your query with our expert opinion and with our knowledge. Thank you. Goodbye.